Hello, my dear friends. I'm Professor Vyam Khan, and we are today going to continue the process of indexing. So, in today's video, we are going to discuss one of the methods used for indexing or dividing the workpiece into number of equal parts. So, for yesterday's video, we have studied the process of direct indexing in which you can divide the workpiece into some limited number of divisions, like you can divide it into 3, 4, 6, uh, 8, and some more parts, but you cannot divided it uh, in more than, you can say, some for some particular divisions you cannot use this method. Like if you want to divide the workpiece into 7 equal parts, or say 9 equal parts, or say 14 equal parts, then it is not possible with the direct indexing method. So at that time we use different method, that is simple indexing, which overcomes the limitations of direct indexing method. Although the direct indexing method is also called as rapid indexing, it is used for rapidly indexing the workpiece, but it is not used because of the limitations, uh, like you cannot divide it from beyond the limit. Okay, so let us understand what is simple indexing, how simple indexing mechanism works. Okay, so let us first of all understand how a simple indexing mechanism works. Now, simple indexing is also known as plain indexing. Okay, because uh, this indexing mechanism uses some basic operations for performing the indexing operation, and this simple indexing, it overcomes the major limitations of the direct indexing method. Okay, you can divide the workpiece in number of equal divisions, and the numbers are not limited as they are limited in the direct indexing method. So in this case, in the case of direct indexing method, the worm and worm gear is disengaged at the beginning. Okay, so before going for direct indexing, we disengage the gears first, but in this method, simple indexing method, we engage it. We engage the worm and worm gear first, and then we start the indexing mechanism by rotating the crank. Okay, so here, so one complete turn of indexing crank, एक complete turn indexing crank का जो है, जब आप घुमाओगे one complete turn of indexing crank, so the workpiece will rotate by 40th revolution. एक बार, अब अगर आप क्रैंक को घुमाते हो, इन केस अगर आप क्रैंक को एक बार घुमाते हो, ठीक है, इस तरीके से एक बार अगर आप क्रैंक को घुमाओगे, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पिन, तो आप उसको ऐसा अगर घुमाओगे तो आपका जो वर्क पीस है वो 1/40 रेवोल्यूशंस घूमेगा। यानी जब आप क्रैंक को 40 बार घुमाओगे, तब जाके आपके वर्क पीस का एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। ओके, एक पूरा रेवोल्यूशन कब कंप्लीट होगा? जब क्रैंक को आप 40 बार घुमाओगे, क्योंकि गियर जो है हमारा वर्म गियर, इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ टिथ? 40 नंबर ऑफ टिथ। ओके, सो इसमें मेजरली 3 इंडेक्सिंग प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम 3 इंडेक्सिंग प्लेट यूज़ करेंगे, जिससे हमको जो नंबर ऑफ डिविजन्स है उसमें बहुत सारा वेरिएशन करने का चांस मिलेगा। सिंस हमारा डायरेक्ट इंडेक्सिंग जो है, इसमें हम लिमिटेड नंबर की प्लेट इस्तेमाल करते थे, जैसे 24 होल्स वाली प्लेट हमने यूज़ किया है डायरेक्ट इंडेक्सिंग में। यहाँ पर हम 3 अलग अलग प्लेट्स यूज़ करेंगे, जिससे हमको बहुत सारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ जाएगा। मतलब हम नंबर ऑफ होल्स या जो नंबर ऑफ डिविजन्स है वो ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी वर्क पीस पे। ठीक है, सो जो इंडेक्सिंग प्लेट्स या जो सर्कल होल्स रहते हैं जो यूज़ होते हैं सिंपल इंडेक्सिंग में, सो इसमें प्लेट नंबर 1 जो है वो 15, 16, 17, 18, 19, 20 होल की रहेगी। प्लेट नंबर 2 जो रहेगी वो 21, 23, 27, 29, 31, 33 नंबर की रहेगी।
मतलब इतने होल्स उन प्लेट्स के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। फिर प्लेट नंबर 3 और उससे ज़्यादा कर सकते हो आप, 37, 39, 41, 43, 47, 49, so like that you can do indexing अप टू 50 डिविजन्स, मतलब हम हमारे वर्कपीस के 50 तक डिविजन्स क्या कर सकते हैं इसकी मदद से ऑलमोस्ट कर सकते हैं। सो अराउंड 50 डिविजन्स यू कैन, मतलब आप 50 इक्वल पार्ट्स में आपके वर्कपीस को मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। सो फ्रॉम दिस सिंपल इंडेक्सिंग प्लेट्स, ये ब्राउन एंड शार्प की दी हुई इंडेक्सिंग प्लेट्स हैं, developed by Brown and Sharp. So these indexing plates are universally used for simple indexing and they are produced by most of the manufacturers। जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स है ये इसी टाइप में इनको प्रोड्यूस करते हैं। ये स्टैंडर्ड प्लेट्स है, प्लेट 1 2 3, तीनों प्लेट का इस्तेमाल हम करेंगे। अब इन प्लेट्स के साथ में यहाँ पर सेक्टर आर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम और उसको क्या दे सके, वर्सेटैलिटी दे सके, हमारे ऑपरेशन को और वर्सेटाइल बना सके। तो हम इंडेक्सिंग प्लेट तो यूज़ करेंगे सर्कुलर शेप की, जिसके ऊपर अलग अलग होल्स रहेंगे, इक्वली स्पेस्ड होल्स रहेंगे, ओके, जिसके अंदर हमारी क्रैंक पिन जो है वो एंगेज होती है। उसी तरीके से हम सेक्टर आर्म का भी इस्तेमाल करेंगे। सेक्टर आर्म क्या करेगा कि जो हमारा डिवीजन है उसको कुछ एंगल, हमको डिग्रीज, अगर कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज में अगर हमको ऑपरेशन करना है, एक स्पेसिफिक पार्ट में वर्कपीस के डिविजन्स करना है, तो हम उसको सेक्टर आर्म की मदद से उसको एंगल में हम वो कर सकते हैं। ठीक है, उतने स्पेसिफिक डिग्रीज में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये जनरली सेक्टर आर्म जो है ये हमारे जो प्लेट है, इंडेक्सिंग प्लेट, इसके ऊपर ही लगा रहता है और इसको हम सेट कर सकते हैं। कोई हमारे वर्कपीस का पोर्शन अगर हमको कंप्लीट करना है तो उसके लिए, जैसे कि अगर मेरा सर्कुलर वर्कपीस है तो मुझे इस सर्कुलर वर्कपीस पे जो है, अगर इतना सर्कुलर वर्कपीस है तो मुझे सिर्फ इतने पोर्शन में वर्क करना है, तो उस हिसाब से मैं सेक्टर आर्म को अरेंज करता हूँ। तो आप क्या करते हो कि जो इतना हमारा पोर्शन है इसी पोर्शन में क्या करते हो, वर्कआउट करते हो। सो इसलिए सेक्टर आर्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्या है इंडेक्सिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर हम समझ के लेंगे सिंस हमको प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस प्रोसीजर केयरफुली। प्रोसीजर में क्या रहेगा सिंपल इंडेक्सिंग के, तो जो भी वर्कपीस रहेगा इसको अगर हमको डिवाइड करना है इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, तो पहले कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है वो हम नोट डाउन करेंगे। और जो डिविजन्स है इससे हम 40 को जो है वो डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। सो दे विल डिवाइड 40, 40 को डिवाइड करेंगे। सपोज आई वांट टू डिवाइड द वर्कपीस इन 10 इक्वल पार्ट्स, वर्कपीस को 10 इक्वल पार्ट्स में मुझे अगर डिवाइड करना है, तो वो जो 10 डिविजन्स है ऑफ द वर्कपीस दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय n, उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इंडेक्सिंग मोमेंट है, हमारी इंडेक्सिंग मोमेंट ऑफ क्रैंक जो है, जिसको हम सिंपली इंडेक्सिंग भी बोलते हैं, ये कैलकुलेट की जाएगी बाय डिवाइडिंग 40 बाय दिस नंबर ऑफ डिविजन्स। सो 40 बाय 10 मैं करूँगा तो मुझे इंडेक्सिंग के जो है क्रैंक को कितना घुमाना है, कितना मोमेंट क्रैंक को देना है, ये मुझे इस इंडेक्सिंग के नंबर से पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नंबर है, जैसे कि अगर मैंने इसको 10 इक्वल डिविजन्स करना है मुझे, ठीक है, तो 10 इक्वल करना है तो 40 बाय 10 हो जाएगा। तो 4 रिवॉल्यूशंस मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग क्रैंक को हर एक मिलिंग कट के बाद में, हर एक मिलिंग ऑपरेशन के बाद में 4 इंडेक्सिंग क्रैंक को जो है 4 रेवोल्यूशंस घुमाना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो है वर्क पीस जो है वो इक्वल डिविजन्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा सेक्टर आर्म दिया है, सी दिस। सो हम क्या कर रहे हैं, वर्क पीस का जो इतना पोर्शन है उसके ऊपर ही वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, अगेन अगेन यू कैन सी क्रैंक पिन हियर, यहाँ पर हम क्रैंक पिन भी देख सकते हो, इंडेक्स पिन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्स क्रैंक भी देख सकते हो, ये हमारा वर्म एंड वर्म व्हील का अरेंजमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सो
अगर ये जो नंबर है, इंडेक्सिंग का नंबर है, ये अगर होल नंबर रहता है, क्या रहता है, अगर ये होल नंबर रहता है, ठीक है, तो ऑपरेशन जो है वो सिंपल हो जाता है। काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में हम जो है डिविजन्स कर सकते हैं। If the above number is a whole number, then crank is rotated by that much number of revolutions. उतने revolution से क्या किया जाएगा, crank को रोटेट किया जाएगा आफ्टर ईच मिलिंग ऑपरेशन। तो पहला जब मिलिंग ऑपरेशन आप करोगे, ठीक है, उसके बाद 4 बार रिवॉल्यूशंस हम करेंगे एज पर आवर नंबर्स। 4 रिवॉल्यूशंस क्रैंक के हम घुमाएंगे, क्रैंक को खोलेंगे और क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे 4 बार और वापस उसी पिन पे लाके लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे पहला डिवीजन हो जाएगा इससे। तो फिर वो ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा, मिलिंग का कट दिया जाएगा, मिलिंग कट होने के बाद में मतलब ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर से पिन निकाली जाएगी, फिर 4 रेवोल्यूशंस घुमाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा डिवीजन। ऐसे हम 10 डिवीजन्स में क्या कर सकते हैं, वर्कपीस को डिवाइड कर सकते हैं। सिंस ये जो नंबर था ये होल नंबर था, 4 रेवोल्यूशंस डायरेक्टली हम कर सकते थे। अगर हम ये होल नंबर नहीं आता है, इन केस अगर ये हमारा नंबर जो है ये होल नंबर नहीं रहता, तो हमको कैसा करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स होता है मतलब ज़्यादा भी नहीं। अब इफ़ द इंडेक्सिंग क्रैंक मोमेंट कैलकुलेटेड बाय 40 बाय n, जो हमारा इंडेक्सिंग क्रैंक है या इंडेक्सिंग है, ये अगर होल नंबर नहीं रहता है तो इसको कैसा करना है। सो इफ़ इट इज़ नॉट अ होल नंबर, इट इज़ सिंप्लीफाइड एंड देन एक्सप्रेस्ड एज ए होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। तो ये अगर समझ लो 40 है, 40 में से कुछ 10 मैंने पहले क्या किया था, करना चाह रहा था, अगर मैं 11 करना चाह रहा हूँ तो 11 के जो भी डिविजन्स आएंगे, सो 3 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा हमारा। तो उस 3 पॉइंट समथिंग नंबर को हमको क्या करना है, एक होल नंबर में कन्वर्ट करना है। एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन में, एक होल नंबर रहेगा और एक क्या रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। जैसे हम कोई एक होल नंबर और फ्रैक्शन कैसा लिखते हैं, तो सपोज 5 इंटू 1/7 ऐसा कुछ हम लिखते हैं, या 3 इंटू 7/8 ऐसा हम लिखते हैं, होल एंड ए फ्रैक्शन। तो ये पूरा होल नंबर रहता है और ये दूसरा पार्ट जो है वो रहता है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। सो हमको क्या करना है, जो भी नंबर आएगा, इफ़ इट इज़ नॉट ए होल नंबर, सो वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन दैट फॉर्म। इस फॉर्म में, होल नंबर और फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या करना है, उसे रिप्रेजेंट करना है। जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा इन इस नंबर का, इस फर्दर प्रोसेस उसको और प्रोसेस किया जाएगा। इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय, its denominator will be multiplied by some suitable common number. Its denominator, numerator will be multiplied by suitable common number, जो हमको देगा equal number of holes available on any of the indexing plate। जैसे कि अगर मैं ये नंबर बोलता हूँ 3 इंटू 4/7, ओके, 3 इंटू 4/7, तो ये जो फ्रैक्शन है, ये 4/7 जो फ्रैक्शन हमारा आया है, सो इस 4/7 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस का जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को कुछ एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है यानी जो 7 है, ये 7 कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास अवेलेबल प्लेट्स के नंबर के होल्स में। जैसे कि हमारे पास कौन सी प्लेट्स अवेलेबल है, हमारे पास में ये प्लेट्स अवेलेबल है, ये अलग अलग प्लेट्स हमारे पास में अवेलेबल है, ये 3 प्लेट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इस 7 को मैं क्या करूँगा, इस 7 को कन्वर्ट करूँगा मैं आइदर फ्रॉम एनी ऑफ दिस, इसमें से कोई भी एक नंबर पे जिसमें वो कन्वर्ट हो सकता है। तो मेरा 3/7 जो फ्रैक्शन का पार्ट है, इसके 7 को अगर मुझे इन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर पे कन्वर्ट करना है, तो जो नंबर में वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा नंबर मैं क्या करूँगा, इस 3/7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। फॉर एग्जांपल ये 7 जो है, ये 7 कन्वर्ट हो सकता है 21 में, ओके। सो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, सो ये बन जाएगा मेरा 9/21। सो ये 21 आ गए मेरे पास में, ये 21 मेरे प्लेट में अवेलेबल है। तो ये 21 होल की जो प्लेट है, प्लेट नंबर 2, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, 9 डिविजन्स मतलब 9 बार इसको रोटेट करूँगा, जिससे मुझे मिलेगा 9th होल पे मैं क्या करूँगा, उसको घुमाऊँगा, जिससे मुझे वो इक्वल डिविजन्स
मिल जाएंगे। आया ध्यान में? इसको हम और आगे डिटेल में समझते हैं। Okay, if it is not a whole number, then convert it into uh, that particular whole number and a fraction part. Fraction part जो रहेगा उसको भी हम convert करेंगे into the available holes की plate की holes के number में। ठीक है, so that particular whole circle is selected for the movement of crank pin. Okay, जो भी whole circle है वो select किया जाएगा crank pin के movement के लिए, और जो न्यूमरेटर है वो बनेगा the numerator of the process fraction stands for the number of holes to be moved by the indexing crank। मतलब 21 नंबर के होल सर्कल को सेलेक्ट करना है और इसमें 9 बार हमको क्या करना है, 9वें होल पे क्रैंक पिन को क्या करना है, मूव करना है। ओके, सो 9 होल से, सॉरी 9वें नंबर पे नहीं, 9 होल से हमको क्या करना है, क्रैंक पिन को मूव करना है। ठीक है, इससे हमको हमारा एक कंप्लीट टर्न जो है वो इंडेक्सिंग क्रैंक का वो मिल जाएगा। सो द holes to be moved by the indexing crank in the selected hole circle in addition to complete turns of the indexing crank equal to whole number part of 40 by n। कैसे करते हैं तो समझ के लेंगे। so the indexing required to be to cut 8 flutes, 8 flutes कट करने हैं या 8 डिविजन्स करना है। 8 flutes मतलब क्या कर रहे हैं हम, हमारा रिमर या फिर ड्रिल हम कट कर रहे हैं। ठीक है, सो 8 फ्लूट बनाना है, तो 8 अगर बनाना है तो 40 बाय 8। नंबर ऑफ कट्स कितने हैं, 8 हैं। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 8 हैं। सो 8 40 बाय 8 मतलब ये आ गया 5। तो ये 5 टर्न्स रहेंगे पूरे इंडेक्स क्रैंक को देने के। ओके, सो 5 टर्न्स में हमको क्या करना है, सिंपली क्रैंक को घुमाना है एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट सिंपली। इफ़ इट इज़ नॉट ए होल नंबर, ओके, जैसे 7 फ्लूट्स बनाने हैं, 7 डिविजन्स करना है, तो 7 डिविजन्स के लिए 40 बाय 7 करूँगा। सो 40 बाय 7 जो भी कैलकुलेशन आएगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, 5 इंटू 5 बाय 7 में इसको कन्वर्ट करूँगा। अब इसमें से जो 5 बाय 7 का पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करके इस 5 बाय 7 का जो डिनोमिनेटर है, ओके, इस 5 बाय 7 का जो डिनोमिनेटर है इसको हम एक होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ये होल नंबर ऐसा होना चाहिए जो हमारे इंडेक्सिंग प्लेट के नंबर ऑफ होल्स पे अवेलेबल हो। ठीक है, सो द 7th टर्न इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एन इंडेक्स प्लेट एंड ए सेक्टर आर्म। ये जो 5 बाय 7 है इसमें हमको इंडेक्स प्लेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और सेक्टर आर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जैसे कि सो इसमें से कोई भी एक एनी होल सर्कल सेलेक्ट करो आप, और जो डिविजिबल रहेगा 7 से। ठीक है, सो इसमें कौन से नंबर्स है जो डिविजिबल है 7 से, तो ये है 21 विच इज़ डिविजिबल बाय 7। 7 3 ज़ा 21। ओके, सो इस 7 को हमको कन्वर्ट करना है 21 में। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to multiply this 7 by 3 as well as we have to multiply the numerator 5 by 3, so it will become 15 by 21। ये 5 by 7 का कन्वर्जन हो जाएगा 15 by 21 में। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 5 फुल टर्न्स हमको देने पड़ेंगे। 5 जो पहला फुल नंबर है ना हमारा होल नंबर यहाँ पर, यस this 5 here। ओके, सो वी हैव टू गिव 5 फुल टर्न्स, 5 पूरे टर्न्स देने पड़ेंगे हमारे क्रैंक को, प्लस हमको जो है वो 21 होल के जो सर्कल है इसके ऊपर 15 होल्स क्या करना पड़ेगा, हमारे 5 फुल टर्न्स देने पड़ेंगे, प्लस 15 होल्स मूव करने पड़ेंगे 21 होल सर्कल पे। मतलब प्लेट नंबर 2 पे 21 होल सर्कल सेलेक्ट करेंगे हम, और उस पर क्या करेंगे, हमारा जो क्रैंक है वो 15 होल्स से मूव करेंगे। सो वी हैव टू मूव इट बाय 15 होल्स, दैट विल गिव 1 इक्वल डिवीजन। ये हो जाएगा हमारा पहला डिवीजन। ओके ओके, पहला ऑपरेशन हो गया। पहला ऑपरेशन होने के बाद में ऐसे घुमाएंगे 5 फुल सर्कल्स, 5 फुल टर्न्स देंगे हमारे क्रैंक को। ओके, 5 बार घुमाना है पूरी क्रैंक, 1 2 ये हो गया 3, ये 4 और ऐसा 5। ठीक है, ये 5 घुमाने के बाद में 21 होल सर्कल जो रहेगा हमारा, 21 होल का जो भी सर्कल रहेगा
उसमें 9 डिविजन्स घुमाना है हमारे, 9 होल्स घुमाना, 15 होल्स घुमाना है हमारे क्रैंक को। सो ये आ जाएगा नया पोजीशन पे क्रैंक। ठीक है, ये हो गया हमारा एक डिवीजन। दिस बिकम्स आवर वन डिवीजन। ओके, ये एक डिवीजन हो जाता है। ओके, ऑपरेशन करेंगे, कटिंग ऑपरेशन। कटिंग ऑपरेशन होने के बाद में, मिलिंग ऑपरेशन होने के बाद में, फिर इसी तरीके में हम क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे। सो दैट विल डिवाइड द वर्क पीस इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो उसको? 7 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में अगर आता है तो। और एक बार देख सकते हैं तो हमने यहाँ पर देखो, अब 21 जो था ये हमारा 7 का मल्टीप्लायर था, बराबर है। 7 जो था वो 21 में कन्वर्ट हो सकता था, एज वेल एज और कोई दूसरे नंबर्स में कन्वर्ट हो सकेगा। तो किस में कन्वर्ट हो सकता है 7? तो इसमें 28 अवेलेबल नहीं है, 42 नहीं है, 49 है। 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49। तो 49 में हम क्या कर सकते हैं, इस 7 को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे 49 में? तो चूज एनी होल सर्कल दैट इज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर दैट इज बाय 7। 7 से जो डिवाइड हो सकता है ऐसे नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो 7 से 49 भी डिवाइड हो सकता है, 21 भी हो सकता है। हमने 21 का देख ली, 49 का आप समझते हैं। सो 49 में कन्वर्ट करने पर, 49 से कन्वर्ट करने पर इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 7 से। सो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 5 ज़ा 35। सो 35 होल्स मूव करना है आपको 49 होल सर्कल पे। ठीक है, सो 5 पूरे टर्न्स हम देंगे वापस से, 5 फुल टर्न्स ऑफ क्रैंक। 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, और साथ ही साथ में इन 49 होल सर्कल पे, ठीक है, जो भी 49 होल सर्कल रहेगा इस पे कितने टर्न्स, कितना होल्स मूव करना है? यहाँ से इसको 35 होल्स मूव करना है। सो अराउंड हियर आपका क्रैंक का ये नया पोजीशन आ जाएगा। ये हो जाएगा एक कंप्लीट टर्न और एक कंप्लीट डिवीजन ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, इस तरीके से एक कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा पूरे वर्क पीस का। देन यू कैन कंटिन्यू द ऑपरेशन। So this is how your simple indexing mechanism works. Okay, there are some limitations again simple indexing को हम 50 से ऊपर वाला जो indexing है वो इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं कंबाइंड या फिर जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंडेक्सिंग का। ठीक है, 50 से ऊपर के अगर हमको डिविजन्स करना है 50 से ऊपर, सो वी कैन नॉट डू इट on the simple indexing mechanism. Okay, so therefore we have to do it on what? Compound indexing. So वो हम जो है वो अगले वीडियो में समझ के लेंगे। Till then please stay safe, stay healthy and keep learning. Thank you.